برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں معمولی بہتری، برائلر گوشت کی قیمت میں استحکام، مرغی کا گوشت 654 روپے کلو کی سطح پر برقرار، انڈوں کی قیمت مستحکم 250 روپے درجن فروخت، انڈوں کی پیٹی 7380 روپے کی ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتوں میں استحکام جو ہے رکھا گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مہنگا برائلر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے اس کی خریداری کم کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کھپت کم ہوئی ہے، اور کھپت کم ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ 654 روپے فی کلو کی سطح پر آج برائلر برقرار رکھا گیا ہے، جو کہ اب بھی 650 روپے فی کلو سے زائد کی سطح پر موجود ہے۔ اسی طرح ہول سیل زندہ برائلر 428، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 436 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، اور برائلر کی قیمتوں میں گزشتہ 2 دنوں سے مسلسل اضافہ تھا، تاہم آج جو ہے 654 روپے فی کلو کی سطح پر قیمتیں جو ہیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ اور اسی طرح موسم میں تبدیلی کی وجہ سے جو انڈوں کی قیمتیں ہیں وہ بھی جو ہے استحکام میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 250 روپے فی درجن قیمت آج جو ہے مقرر کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ 3 روز سے 250 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی، اور انڈوں کی پیٹی 7380 روپے کی مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ شہریوں کو فی انڈا جو ہے 21 روپے سے لے کر 23 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں انڈے کی فروخت جو ہے وہ 23 روپے تک کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ حکومت کنٹرول نہیں کر رہی۔ 650 روپے فی کلو سے زائد کی سطح پر اب بھی برقرار رکھی گئی ہیں، جبکہ عام صارف یا عام خریدار جو ہے اس کی قوت خرید سے برائلر یکسر باہر ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ۔ پی ٹی آئی رہنما زبیر نیازی عباد فاروق کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ تھانہ سول لائنز میں سب انسپکٹر افضل ورک کی مدیت میں درج ہوا ہے۔ ایف آئی آر میں دہشت گردی، جلاؤ گھراؤ کی دفعات شامل۔ عباد فاروق نے 70 سے 80 افراد کے ساتھ مل کر پولیس وین کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس بارے مزید جانتے ہیں محمد علی سے۔ محمد علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، گزشتہ روز ہونے والے اس واقعے پر تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کیا گیا، جس میں دہشت گردی، کار سرکار مداخلت، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور سرکاری اہلکاروں پر جو وہ حملہ کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس میں زبیر نیازی، کیونکہ وہ گاڑی میں پولیس کے مطابق اپنی مرضی سے بیٹھے تھے، لیکن عباد فاروق نامی نوجوان، یہ پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کہا جا رہا ہے کہ ان کو 2023 کے الیکشن میں ٹکٹ دی جانی تھی ایم این اے کی، اس حوالے سے انہوں نے جو گاڑی پہ چڑھ کر جو اس کی سکرین بریک کی اور پولیس والوں کو ڈرایا دھمکایا اور ان سے ہاتھا پائی، اس کے نتیجے میں مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج ان کو دہشت گردی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ ان کی گرفتاری جو تھی وہ گزشتہ رات ہی انہوں نے ڈال دی تھی، اور ان کے خلاف مقدمہ جو تھا وہ تھانہ سول لائن میں درج کر لیا گیا۔ جی ٹھیک ہے محمد علی، آپ کا شکریہ۔ رہنما تحریک انصاف عباس چودھری کا ٹویٹر پیغام، کہا جیل برو تحریک کے پہلے مرحلے میں 700 لوگ گرفتار ہوئے، صرف 81 گرفتاریاں ظاہر کی گئی ہیں، باقی لوگ یا تو ہار گئے ہیں یا مختلف تھانوں میں ہیں۔ رہنما تحریک انصاف عباس چودھری کا ٹویٹر پیغام، کہا جیل برو تحریک کے پہلے مرحلے میں 700 لوگ گرفتار ہوئے، صرف 81 گرفتاریاں ظاہر کی گئی ہیں، باقی لوگ یا تو رہا ہو گئے یا مختلف تھانوں میں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ رہنما تحریک انصاف عباس چودھری کا ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے میں 700 لوگ گرفتار ہوئے، صرف 81 گرفتاریاں ظاہر کی گئی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم ثوابی، عمر سرفراز چیمہ، ولید اقبال سمیت 80 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں نے رضاکارانہ گرفتاریاں پیش کر دیں۔ زبیر نیازی کو کارکن پولیس کی گرفت سے چھڑا کر لے گئے۔ گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کو سینٹرل جیل کوٹ لکھپت منتقل کر دیا گیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی کے صوبائی دفتر میں تقریب کے دوران رہنماؤں اور کارکنوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پھر تمام رہنما جے روڈ سے ریلی کی شکل میں گرفتاریاں دینے ماہ روڈ پہنچے۔ شاہ محمود قریشی نے ماہ روڈ کی بجائے سی سی پی آفس کے باہر گرفتاری دینے کا اعلان کیا، تاہم وہ جو ہی کنٹینر سے اترے تو پولیس نے ان کو تحویل میں لے لیا۔ پھر اسد عمر، سینیٹر اعظم ثوابی، عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال، محمد خان مدنی اور دیگر نے گرفتاری دے دی۔ میں جب کنٹینر سے اتر کر سی سی پی او کے آفس کی طرف روانہ ہوا، جو میں نے کارکنوں کو کہا کہ وہاں آئیں
तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। क़यादत की जानब से गिरफ्तारियां देने के बाद सैकड़ों की तादाद में कारकुन खुद कैदियों की वैन के अंदर दाखिल हुए और कुछ छत पर सवार हो गए। रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देने वाले कारकुन नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पुलिस ने पार्टी रहनुमा ज़ुबैर खान नियाजी को भी गिरफ्तार कर लिया। ताहम सीखपा कारकुनों ने ज़ुबैर नियाजी को पुलिस से छुड़वा लिया। पुलिस गाड़ी की तोड़फोड़ की गई तो पुलिस ने पार्टी रहनुमा अब्बास फरूक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानब से ये भी ऐलान किया जाता रहा कि जो कारकुन गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो कैदियों की वैन में आकर बैठ जाएं। पीटीआई के कारकुनार प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। पुलिस ने इमरान खान के फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया अजहर मिशवानी को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी 5 मार्च को शादी है। पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पुलिस ने 500 से 700 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। तहरीक इंसाफ के 500 से 700 कारकुन अब तक जो है गिरफ्तारियां के लिए खुद को पेश कर चुके हैं। पुलिस जो पूरी तैयारी के साथ आई थी, प्रिजनर वैन्स के साथ आई थी, वहां हजारों लोगों को देख के परेशान है कि उन्होंने आखिर करना क्या है। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तारी देने के लिए सीएसपी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज रही। ताहम पुलिस ने सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया जो खुद पुलिस की वैन्स पर सवार हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जेल भरो तहरीक पुरअमन तहरीक है। असद उमर ने कहा कि हम ऐसा पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं जिसका कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था। मज़ीद देखिए लियाकत अली के इस रिपोर्ट में। भरो तहरीक पीटीआई क़यादत ने माल रोड पर मैदान लगाए रखा। गिरफ्तारियां पेश करने से पहले पीटीआई के मरकजी कायदीन का इज्तिमा से खिताब। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम मईशत को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे कारकुनान और कायदीन पर झूठे पर्चे किए गए जिसके खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आप बुनियादी हुकूक सल्ब करना चाहते हैं। आज बारिश का पहला कतरा है, बारिश का पहला कतरा है और जैसे जैसे ये बादल पेशावर की तरफ, पेशावर से होते हुए रावलपिंडी की तरफ, रावलपिंडी से होते हुए फैसलाबाद की तरफ, फैसलाबाद से होते हुए गुजरावाला की तरफ, गुजरावाला से होते हुए मुल्तान की तरफ बरसेंगे तो लगेगा कि सर्दियों की नहीं सावन की बारिश आ गई है। असद उमर ने गिरफ्तारी देने वाले कारकुनों को खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि तहरीक इंसाफ के दलेर वर्कर्स एक जज्बे के तहत गिरफ्तारी दे रहे हैं। हमारी जद्दोजहद के नतीजे में कायद-ए-आज़म के ख्वाब की तकमील होगी। ऐसा जमहूरी पाकिस्तान बनेगा जिसके फैसले अवाम करेंगे। गिरफ्तारी पेश करने आए हैं उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं। इज्तिमा से पार्टी की दीगर क़यादत ने भी खिताब करते हुए हुकूमत को हदफ़ तनकीद बनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा, मियां महमूदुर रशीद और दीगर का कहना था कि हुकूमत को इलेक्शन का ऐलान करना होगा। हमारी जद्दोजहद आइन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ है। यहाँ से खान साहब का एक कारकुन, एक सिपाही जो आज चेरिंग क्रॉस पे मौजूद है, मतलब उसने खौफ का पुत तोड़ दिया है और अब तुम्हारे घबराने का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तान के कायद ने ऐलान किया था कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कराना है। आज ये तहरीक हकीकी आजादी की तहरीक को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क के माशी हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इस वक्त महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ देख ले कौम आज इनकलाब के लिए तैयार है। जेल भरो तहरीक का मकसद आवाम का खौफ दूर करना है। वज़ीर आज़म मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, अपनी चोरी का आधा पैसा वापस ले आएं तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खुद आगे आकर जेल भरो तहरीक चलाई। जेल भरो तहरीक का मकसद आवाम का खौफ दूर करना है। मुखालफिन जो मर्जी कर लें, हमारी हुकूमत जरूर आएगी। हमने जो जेल भरो तहरीक है वो आगाज हो गया लाहौर से। मैं फिर से लाहौर के लोगों को ख़ास तौर पे जिस तरह वो निकले और उन्होंने सपोर्ट की, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपनी सीनियर लीडरशिप जिसने खुद फैसला किया कि नहीं हमारे से शुरू होगी गिरफ्तारियां, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। अल्लाह ने आज मैंने देखा लोगों के खौफ दूर कर दिए। मैंने वो लोगों को जो आज देखे सीन्स, मुझे
मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। इमरान खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ बड़ी तकरीरें करते थे और अब कौम को कह रहे हैं कि मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। शहबाज शरीफ ने बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई। साजिश में आसिफ जरदारी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मगरमच्छ के आंसू न बहाएं, अपनी चोरी का आधा पैसा वापस ले आएं तो महंगाई खत्म हो जाएगी। ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दे कि जी बड़ी तकलीफ है। आपने और ये जो आसिफ जरदारी ने और आपके खानदानों ने जो 30 साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी महंगाई ना करनी पड़ती। तो लोगों से कुर्बानियां ले रहे हैं, लोगों को बार बार पहले ये महंगाई करके मजीद और कुर्बानी लेना चाहते हैं, कोई अपनी भी कुर्बानी दे दें। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार यही लोग हैं। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। वहीं तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होने के अज़्म का इजहार कर दिया है। मेहर बानो कुरैशी कहती हैं, जब तक मुल्क में कानूनी हुक्मरानी कायम नहीं होती, जेल भरो तहरीक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी की विमेन विंग की मरकजी सदर कमल शोजब व दीगर के हमरा पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि कारकुनों से कबल क़यादत ने गिरफ्तारी देकर मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए हैं। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होती, जेल भरो तहरीक जारी रहेगी। आज हमारी जमात की क़यादत ने ये साबित किया है कि वर्कर्स से आगे सबसे पहला कदम इस जमात की लीडरशिप लेगी, और वो शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आज़म स्वाति साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, और उमर चीमा साहब जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, उन सब ने आज पहली फहरिस्त में अपनी गिरफ्तारी दी है। विमेन विंग के मरकजी सदर कमल शोजब का कहना था कि जो हुक्मरान ये समझते थे कि लोग डर जाएंगे, उनकी गलत फहमी दूर हो गई। लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन इमरान खान जलाओ घेराव नहीं चाहते। आपके लीडर इमरान खान ने जो इस अवाम का और मुल्क का दर्द रखता है, उसने क्या किया? उसने अब तक की अपनी 10 महीने की जितनी तहरीकें चलाई, आइन और कानून के अंदर चलाई। एक दिन हमने पहिया जाम हड़ताल का यहाँ पर अनाउंस नहीं किया, हमने कोई जलाओ घेराव तहरीक नहीं चलाई। इस मौका पर मलिका बुखारी का कहना था कि खौफ के बुत तोड़ने सड़कों पर निकले हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख देखकर खुद को तहरीक इंसाफ का काउंसलर साबित किया है। इमरान खान सिर्फ जेलें भरने का दावा कर सकते हैं। मजीद क्या कहा, देखिए राहील अली के इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान और उनके साथियों पर कड़ी तनकीद की। बोले, जल्द इमरान खान की एक और वीडियो सामने आने वाली है। सदर आरिफ अलवी खुद नाक नहीं साफ कर सकते, इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी? आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख देकर खुद को तहरीक इंसाफ का काउंसलर साबित किया है। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज किया। इमरान खान सिर्फ जेलें भरने का दावा कर सकते हैं। जेल भरो तहरीक, जेलें भरने के लिए हौसला चाहिए होता है, और हौसला जो है वो खान साहब में हमने तो जिंदगी भर देखा नहीं है। खुद आप बंकर में रहें, बनी गाला में रहें या जमान पार्क के एयर कंडीशन कमरों में रहें, और लोगों को कहें कि वो जाके जेलें भर दें। जेलें तब भरी जाती हैं जब फ्रंट से लीड किया जाए, जब लीडरशिप दिखाई जाए। तलाल चौधरी ने दावा किया कि चीरिंग क्रॉस पर पीटीआई के 100 कारकुन भी नहीं पहुंचे। राहील अली, लाहौर न्यूज़। पंजाबी कॉम्प्लेक्स में भुट्टो तुझे सलाम के मौजू पर सेमिनार। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुल्क की सियासत में भुट्टो खानदान के शानदार किरदार पर रोशनी डाली है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा व दीगर का कज़ाफ़ी स्टेडियम पंजाबी कॉम्प्लेक्स में भुट्टो तुझे सलाम के मौजू पर सेमिनार से खिताब। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक ड्रामा है। इमरान खान अपने बच्चों को तो लंदन में इंजॉय कराते हैं और दूसरों के बच्चों को कहते हैं जेल जाओ। कौम के बच्चों को कहें कि जेलें भरें और अपने बच्चे जो हैं वो लंदन और वलायत में बैठ के मौज की जिंदगी गुजारे। अगर उन्होंने जेलें भरनी है तो उनसे गुजारिश है कि वो पाकिस्तान अपने बच्चों को भी बुलाएं और खुद भी निकले और उन जुलूसों की क़यादत करें। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क अगर आज एटमी ताकत है तो इसका क्रेडिट भुट्टो खानदान को जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो लीडर है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो वो लीडर हैं जो अब वो उन लीडरों में से हैं जो अपनी कौमों को कुछ देकर जाते हैं। अगर आज
ایک ہاتھ میں ایٹم بم اور دوسرے میں میزائل جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید لائی تھی اس کی ٹیکنالوجی. صدر پیپلز پارٹی ویمن ونگ پنجاب سمینہ خالد گھرکی و دیگر نے بھی سیمینار سے خطاب کیا. کیمرامین عمیر رانا کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز. مسلم لیگ قائد-اعظم کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ نفرت کی سیاست ملک کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے. چودھری شجاعت حسین اور چودھری شافع حسین نے ڈیوس روڈ پر پارٹی آفس کا دورہ کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ مسلم لیگ ہاؤس پہلے بھی مسلم لیگ کا تھا، آج بھی مسلم لیگ کا ہے. ہم نے جو بھی اقدام اٹھایا وہ پاکستان مسلم لیگ کے آئین اور قانون کے مطابق ہے. ہماری پارٹی آئین اور قانون پر یقین رکھتی ہے. نفرت کی سیاست اس ملک کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے. چودھری شجاعت حسین نے مزید کہا کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے کہ ملک کی معیشت کو سیدھا کیا جائے. ملک جن بحرانوں میں پھنس رہا ہے اس پر تمام پارٹی کی قیادتوں کو ایک ہونا پڑے گا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ایک مرتبہ پھر آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب آفس پیش نہ ہوئے. عثمان بزدار کو نیب لاہور نے طلب کر رکھا تھا. عثمان بزدار کو پراپرٹی، انکم اور اخراجات کی تفصیلات کے ساتھ پیش ہونے کا کہا گیا تھا. نیب لاہور نے عثمان بزدار کو دوسری مرتبہ پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا. عثمان بزدار کو 16 فروری کو نیب طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. عثمان بزدار نے لاہور احتساب عدالت سے عبوری ضمانت بھی کروا رکھی ہے. ذرائع کے مطابق نیب عثمان بزدار کو طلبی کا جلد تیسرا نوٹس جاری کرے گی اور عدم پیشی پر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اب آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے. سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں اضافہ. پیاز 200، لہسن 450، ادرک 640 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. مٹر 170، اروی 160 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے، جبکہ سیب 380 روپے فی کلو، کیلا 280 روپے فی درجن تک فروخت ہونے لگا ہے. آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے. پھل اور سبزیاں قوت خرید سے باہر ہونے لگی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیاز 200، لہسن 450، ادرک 640 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. مٹر 170، اروی 160 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے. پھلوں کی بات کی جائے تو سیب 380 روپے فی کلو، جبکہ کیلا 280 روپے فی درجن تک فروخت ہونے لگا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عبدالقادر سے. عبدالقادر بتائیے گا. آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نظرنامے میں جاری کیے گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے حوالے سے، اس میں 5 پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. سرکاری نظرناموں میں جن پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے اس میں سیب کالا کلو 5 روپے مہنگا کر کے 290 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 380 روپے فی کلو تک یہی سیب فروخت کیا جا رہا ہے. کیلا درجہ اول 5 روپے اضافے کے بعد 155 روپے فی درجن مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 280 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح کیلا درجہ دوم 5 روپے اضافے کے بعد 95 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 150 روپے فی درجن تک یہی کیلے کے جو ہے اس کی فروخت کی جا رہی ہے. کھجوری رانی 10 روپے مہنگی کر کے 435 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 520 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے. جبکہ انار کا جو ہے وہ مارکیٹ میں 850 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کی سرکاری ریلیز جو ہے میں قیمت جو ہے 600 روپے فی کلو مقرر کی گئی. امرود 4 روپے مہنگا کر کے 90 روپے مقرر کیا گیا، لیکن 90 روپے کے برعکس امرود مارکیٹ میں جو ہے 120 سے 140 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. 3 پھلوں کی سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے. پیاز آج جو ہے 165 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں پیاز بدستور درجہ اول جو ہے وہ 200 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر 1 روپے بڑھا کر 44 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 60 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. سبز مرچ 4 روپے اضافے کے بعد 90 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 90 کے برعکس سبز مرچ کی فروخت 120 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹینے فارمی 80 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. آلو 38 روپے مقرر کیا گیا، لیکن 60 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے. اسی طرح بیگن 90 کے برعکس 110 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. کریلا 270 روپے سرکاری ریلیز کی قیمت ہے، لیکن مارکیٹ میں 350 سے 400 روپے فی کلو تک کریلے کی فروخت کی جا رہی ہے. بند گوبھی 2 روپے اضافے کے بعد 32 روپے مقرر کی گئی، لیکن 32 کے برعکس 50 روپے فی کلو تک بند گوبھی کی فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے، جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری نظرناموں کا اجرا انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر کرتی ہے، لیکن ان پر جو عمل درآمد ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے نہیں کروایا جاتا. جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ عوامی سواری بھی غریب کی پہنچ سے کوسوں دور ہو گئی ہے.
यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 3500 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। यामाहा कंपनी की कोई भी मोटरसाइकिल 3 लाख रुपए से कम पर दस्तयाब नहीं है। मजीद देखिए अब्दुल कादिर के इस रिपोर्ट में। गरीब की सवारी भी जेब पर भारी, मोटरसाइकिलें भी महंगाई की रेस में आगे आगे, खाम माल की कीमतों में इजाफा और एलसीज के मसाइल, शहरियों की अवामी सवारी खरीदने की सकत ना रही। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 3500 रुपए तक इजाफा कर दिया। यामाहा कंपनी की कोई भी मोटरसाइकिल अब 3 लाख रुपए से कम पर दस्तयाब नहीं। यामाहा YB 125Z 3000 रुपए इजाफे के बाद 3,85,000 रुपए की हो गई। यामाहा YB 125Z DX की कीमत में 3500 रुपए का इजाफा, कीमत 3,30,500 रुपए हो गई। यामाहा YBR 125cc की कीमत 3500 रुपए बढ़ गई, नई कीमत 3,39,500 रुपए मुकर्रर। इसी तरह यामाहा YBR 125G रेड ब्लैक की कीमत में 3500 रुपए का इजाफा, कीमत 3,53,000 रुपए हो गई। यामाहा YBR 125G मैट डार्क ग्रे के दाम 3500 रुपए बढ़ गए, नई कीमत 3,56,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। यामाहा कंपनी ने कीमतों में इजाफे के बाद फौरी तौर पर इसका इत्तलाक कर दिया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। 188 अफसरों और असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादलों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने खुद मुख्तार इदारों के सरबराहों को निगरान हुकूमत की जानिब से हटाने के खिलाफ दरखास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल पंजाब के जवाब की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से ऑफिसर्स के तबादलों का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सनी बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों का कोई इख्तियार नहीं। जब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तबादले नहीं हो सकते। इस्तदा है कि अदालत ऑफिसर्स को बहाल करके अपना हुक्म सुनाए। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने अदालत को बताया कि तकर्रुर और तबादलों के हवाले से निगरान हुकूमत के इक़दामात का जायजा लेने की मोहलत दी जाए। निगरान हुकूमत ने कवायद ज़वाबित के मुताबिक तबादले किए। लाहौर हाई कोर्ट ने 188 ऑफिसर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादलों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने खुद मुख्तार इदारों के सरबराहों को निगरान हुकूमत की जानिब से हटाने के खिलाफ दरखास्तों का फैसला सुना दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने 4 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरखास्तों पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का मामला जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद समेत 70 अरकान की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालती फैसले में कहा गया कि इस नौयत की दीगर दरखास्तों पर पहले भी रिलीफ दिया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन इन हल्कों में इंतखाबी शेड्यूल जारी न करे। मुतल्लिका हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल रहेगा। दरखास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कवायद व ज़वाबित पूरे किए बगैर 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। अदालत ने 70 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकला को दलाइल के लिए 7 मार्च को तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस एहतसाब अदालत ने नाब को ज़िमनी रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए 7 मार्च तक मोहलत दे दी है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं सियासी इंतकाम के खिलाफ है, लेकिन जिसने जुर्म किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने रेफरेंस पर समाअत की। नैब ने ज़िमनी रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए 7 मार्च तक मोहलत दे दी। रेफरेंस पर समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सियासी कारकुनान के जेल में जाने की हमायत नहीं करता। इखलाकी तौर पर पहले लीडर को जेल जाना चाहिए। चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने पर वज़ीर रेलवे ने कोई तबसरा न किया। सियासी कारकुनों का जेलों में जाना जो है, मैं उसकी हमायत तो कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई खुद से ज़ोर लगा रहा हो कि उसे जेल में ले जाया जाए तो इखलाकी तौर पे पहले लीडर को आगे जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मजीद कहा कि परवेज़ इलाही का इमरान खान के साथ अच्छा मुस्तकबिल है, दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। नवाज शरीफ ने जेलें काटी, इमरान खान तो छुप कर बैठे हैं। बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है, परवेज़ इलाही साहब को भी मुबारक और इमरान खान साहब को भी, एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी लंबी जेल काटी। ख्वाजा साद रफ़ीक का मजीद कहना था कि इमरान खान के साथ कुछ हुआ ही नहीं और वो और उनका खानदान महफूज हैं। ऐसा नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ उनके साथ भी हो। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।
लाहौर हाईकोर्ट में तोशाखाना की तफसीलात की फराहमी का केस 1947 से अब तक तोशाखाना की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने तोशाखाना के सरबराह को बयान हल्फी के साथ 23 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना की तफसीलात की फराहमी का केस जस्टिस आसिम हफीज ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि सेक्शन ऑफिसर बिनियामीन ने तोशाखाना का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने एक रिकॉर्ड को खोलने के मामले पर एतराज़ किया और कहा कि रिकॉर्ड खोलने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। सील रिकॉर्ड को खोलने का इख्तियार तोशाखाना के सरबराह के पास है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक विफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि तोशाखाना के रिकॉर्ड को पब्लिक करने बारे आइंदा काबीना इजलास में फैसला होना है। अदालती हुक्म में हिदायत की गई कि 23 फरवरी को तोशाखाना के सरबराह बयान हल्फी के साथ पेश हों। शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में फारूक हबीब की FIA में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने FIA को PTI रहनुमा फारूक हबीब को हिरासत करने से रोक दिया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब की FIA में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने फारूक हबीब को तलब कर रखा है। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से इंक्वायरी की जा रही। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA की कार्रवाई बदनीयती पर मबनी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि FIA की तलबी का नोटिस मुअत्तल किया जाए। अदालत ने FIA को फारूक हबीब को हिरासा करने से रोकते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत, ओगरा और वजारत पेट्रोलियम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने बताया कि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। वकील ने निशानदही की कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने का कोई निज़ाम नहीं। हालिया इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अजहर सदीक एडवोकेट ने इस्तदा की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत, ओगरा और वजारत पेट्रोलियम से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस। लाहौर हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में दरख्तों की कटाई पर पाबंदी आयद कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि दरख्तों की कटाई का केस महकमा एंटी करप्शन को भेज दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत में माहौलियाती कमीशन से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। स्मोक के तदारुक के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। तजावुज़ात के खात्मे और ट्रैफिक रवानी के लिए महकमों से मिलकर इकदाम जारी हैं। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल पेश हुए और अदालत से इस्तदा की कि DG PHA, DG LDA और CTO लाहौर के तबादले की इजाजत दी जाए। अदालत ने DG PHA और CTO लाहौर के तबादले की इजाजत दे दी। अदालत ने करार दिया कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और DG LD को तब्दील न किया जाए। हुकूमत को बता दें कि अदालत का हुक्म है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि हुकूमत DG LD को क्यों तब्दील करना चाहती है। मुझे पता है कि DG LD को तब्दील करने के लिए दबाव कहां से आ रहा है। आपके पास जो मटीरियल है अदालत में पेश करें। हुकूमत को बता देंगे अदालती मामलात में दखल अंदाजी न करे। गिरफ्तार आमा के काम है, इनको चलने दे। अदालत ने ट्रैफिक के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड अवेजा करने का हुक्म देते हुए करार दिया कि ऐसा निजाम बनाया जाए ट्रैफिक जैम पर फौरी रिस्पांस मिले। अदालत ने आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमत से निकाले गए मुलाजमीन का शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने एजर्टन रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने LWMC इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मजीद देखिए फहद अमीन की रिपोर्ट में। LWMC के बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। बरतरफ मुलाजमीन ने शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर एजर्टन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुलाजमत पर बहाल करने का मुतालबा किया।
मुजाहिरीन का कहना था कि LWMC ने 328 कॉन्ट्रैक्ट और 122 रेगुलर मुलाजमीन को बगैर नोटिस दिए मुलाजमत से निकाल दिया है। मुलाजमत से निकाले जाने के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हम लोग 1 माह से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, हमें रोज कहते हैं कि हम आपको कल बहाल कर देंगे, परसों आर्डर दे देंगे, आपको 4 दिन बाद आर्डर मिल जाएंगे, लेकिन ये आर्डर हमें अभी तक आर्डर नहीं मसूल हुए। हमारे इन भाइयों को फौरी तौर पर ड्यूटी पर भेजें और उनकी तनख्वाह रिलीज़ करें। अगर हमारी ड्यूटी बहाल नहीं होती, तनख्वाह रिलीज़ नहीं की जाती, तो फिर हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर LWMC मुलाजमीन के एहतजाज में पहुंचे और उन्हें मुलाजमत पर जल्द बहाल कराने की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि तमाम मुलाजमीन के अलग अलग केसेस हैं, मुलाजमत पर बहाली के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। बाकायदा तौर पर कमेटी बन गई है, इन्हीं में से एक को कोऑर्डिनेटर बना दिया है और हर बंदा अपनी अपनी लहदा एप्लीकेशन लिखेगा कि हर एक केस की लहदा नोयत है। उसके बाद कमेटी फैसला करेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चंद दिनों में इनका मसला हल हो जाएगा। लीग रहनुमा मलक सैफुल मलूक खोखर की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत व तवानाई SM तनवीर की लाहौर की तमाम ताजिर तंजीमों के वफ़द से मुलाकात हुई है। ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों ने ताजिर बरादरी और मार्केटों के मसाइल से आगाह किया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। वज़ीर आला ऑफिस में वज़ीर सनअत व तिजारत व तवानाई SM तनवीर का ताजिर बरादरी के साथ इकायत सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, आमिर मीर और डॉक्टर जमाल नासिर भी शरीक हुए। मुलाकात करने वालों में चेयरमैन लाहौर बिजनेस फ्रंट मोहम्मद अमजद चौधरी, मलक ज़मान नसीब, सैयद अजमत अली शाह, सदाम अतर खान समेत दीगर शामिल थे। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पार्किंग प्लाजे बनाने का मैकेनिज्म बनाया जाए, मार्केटों के मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी बनाई जाए, कागज के निर्ख मुनासिब सतह पर रखने के लिए पेपर मिल्स को किसी मॉनिटरिंग अथॉरिटी के नीचे लाया जाए। SM तनवीर ने ताजिर बरादरी से गुफ्तगू में कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात का इनकाद निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। ताजिरों और सनकारों के मसाइल का हल भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई सतह के मसाइल खुद हल करेंगे और वफाक से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए राब्ता भी किया जाएगा। SM तनवीर का मजीद कहना था कि हम कारखाने और कारोबार बंद करने नहीं चलाने के लिए आए हैं। मुल्क हड़ताल और कारोबार की बंदिश का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ताजिर बरादरी मुश्किल मुआशी सूरत हाल के पेश नजर कारोबार की बंदिश ऐसी सरगर्मियों से दूर रहे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत ने ताजिरों के मसाइल के हल के लिए 3 कमेटियां तश्कील दे दी, जिसमें सरकारी अफसरान और ताजिरों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी में कोई कमी नहीं हुई है। निगरान सूबाई वज़राए सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के इक़दामात बारे तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़रा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी में कोई कमी नहीं, तमाम मरीज़ों को अद्वियात मिल रही हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने वज़रा को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़रा ने यकीन दहानी करवाई कि एसोसिएशन की गुजारिशात और सिफारिशात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के सामने रखेंगे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। मज़ीद देखिए आतिफ परवेज़ की इस रिपोर्ट में। मौसम बहार के दौरान स्पोर्ट्स बोर्ड के इश्तराक से इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स मुकाबले, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन सतह पर मुकाबलों का आगाज, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में कबड्डी के मुकाबलों का एहतमाम। रवायती खेल कबड्डी में मुख्तलिफ अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के साथ साथ हाजरीन का जोश और जज्बा दीदनी था। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि पहली बार इस सतह पर मुकाबले हो रहे हैं। पोजीशन होल्डर्स के लिए 280 मिलियन से ज़ायद के फंड्स रखे गए। पंजाब में पहली मरतबा है कि पूरे पंजाब में हमने जो कॉलेज के स्पोर्ट्स के इवेंट्स हमने करवाए हैं, इसमें 9 खेलें हैं जो लड़कों के लिए हैं और 7 खेलें स्पोर्ट्स जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं। और इसमें हमने लड़कियों के लिए फुटबॉल और क्रिकेट भी इस मरतबा हमने शामिल की है। तकरीब में डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी और डॉक्टर आशिक हुसैन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। कब्रिस्तानों की सिक्योरिटी और चारदीवारी बड़ा मसला बन गई है। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स में 845 कब्रिस्तानों की बहाली और 4 बड़े सरकारी कब्रिस्तानों की तामीर अल्तवा का शिकार।
कमिश्नर लाहौर डिवीजन अफसरान पर बरहम, एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए, उसमें मज़ीद तफसीलात। कब्रिस्तानों की तामीर व बहाली पर सालाना 4 अरब रुपए के फंड्स इस्तेमाल ना हो सके। तामीर व बहाली की लागत का तखमीना 4 अरब से बढ़कर 6 अरब रुपए तक पहुंच गया। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि 80% कब्रिस्तान जनाजगाह, वुजू खाना, गुसल खाना और 4 दीवारी से महरूम हैं। शहर की 274 यूनियन कौंसल्स में 845 कब्रिस्तान मौजूद हैं। 4 नए कब्रिस्तानों की 1654 कनाल 14 मरले सरकारी अराजी पर 4 दीवारी ना हो सकी। भाई कोट में 127 कनाल 11 मरले पर कब्रिस्तान तामीर ना हो सका। बेदियां रोड पर 276 कनाल 6 मरले पर कब्रिस्तान की तामीर रुकी हुई है। बाबू साबू में 525 कनाल अराजी की 4 दीवारी भी इल्तवा का शिकार है। कसूर रोड पर 825 कनाल 17 मरले अराजी पर भी तामीर रोक दी गई। शहर में 135 कब्रिस्तान जनाजगाहों और वुजू खानों से महरूम हैं। 170 कब्रिस्तान तामीरों मुरम्मत के मुंतजिर हैं। 198 कब्रिस्तानों में दाखिली गेट और रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीजन का अफसरान पर बरहमी का इजहार, 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर खमोशा अथॉरिटी मैयत के गुस्ल और कब्रिस्तान में मुंतकली समेत हर किस्म की सहूलत फराहम करे। वर्किंग पेपर और फंड्स मौजूद हैं। बगैर किसी रुकावट के काम मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में 4.5 साल दौर इक़्तिदार में बेशतर मनसूबे ऐलानात तक महदूद रहे। निगरान हुकूमत को नए मनसूबे शुरू करने का इख्तियार नहीं। अरबों रुपए मालियत के प्रोजेक्ट्स फाइलों में बंद हो गए हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग गई। चौधरी परवेज इलाही के दौरे इक़्तिदार के आखिरी अयाम में भी बेशतर मंसूबे शुरू ना हो सके। 2018 से करीम ब्लॉक फ्लाई ओवर और अंडरपास की बाज़गश्त है। 5 साल के दौरान करीम ब्लॉक फ्लाई ओवर मंसूबे पर 1 ईंट भी ना लग सकी। भेकेवाल मोड़ अंडरपास व फ्लाई ओवर मंसूबा भी ऐलानात तक महदूद रहा। बरकत मार्केट के मकाम पर फ्लाई ओवर और अंडरपास का मंसूबा भी लटक गया। शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे का आगाज किया गया। उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज और परवेज इलाही की हुकूमत ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की दोबारा मंजूरी दी। तीनों हुकूमतों में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। परवेज इलाही के दौर में अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का ऐलान किया गया, ताहाल मंसूबे का टेंडर नहीं हो सका। जोहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों में बंद है। MM आलम रोड की रीडिजाइनिंग का मंसूबा भी फाइलों से बाहर ना आ सका। LDA ने लिबर्टी मार्केट में स्काई लाइन प्रोजेक्ट का मंसूबा भी बनाया। तखमीना लागत ज्यादा होने के सबब मंसूबा नाकाबिले अमल करार दे दिया गया। निगरान हुकूमत को नए मंसूबे शुरू करने का इख्तियार नहीं दिया गया। ताहम अब आने वाली हुकूमत इस अमर का फैसला करेगी कि इन मंसूबों को शुरू किया जाए या नहीं। कैमरा टीम के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब के 6 तालीमी बोर्ड्स में सरबराहान की तैनाती इल्तवा में पड़ गई। इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के 6 तालीमी बोर्ड्स में सरबराहान की तकर्रुरी लटक गई। पहले महकमा हायर एजुकेशन ने सुस्ती दिखाई, अब इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद कर दी। 8 माह से तकर्रुरी का अमल मुकम्मल ना हो सका। महकमा हायर एजुकेशन ने जुलाई में दरख्वास्तें तलब कर लीं। ज़राए का कहना है कि 4 माह तक महकमा हायर एजुकेशन का तालीमी बोर्ड सेक्शन दरख्वास्तों की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। स्क्रूटनी मुकम्मल हुई तो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी को लिखा गया, मगर इस दौरान सूबाई हुकूमत खत्म हो गई, जिससे मामला फिर इल्तिवा में पड़ गया। तालीमी बोर्ड के मुस्तकिल सरबराहान न होने से इम्तिहानात के इंतजामात मुतासर होने का खदशा। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और सरगोधा बोर्ड से मुस्तकिल सरबराहान के मुंतजिर। गुज़श्ता साल भी मुस्तकिल सरबराह न होने से पेपर्स आउट होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। महकमा हायर एजुकेशन हुकाम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने नई भर्तियों और तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है। फिल वक्त इतना ही।